کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، دستار والے ساز اور بربط پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا، میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں۔ لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے۔ میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ اصل اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں یہ فضل کیا کہ ہم آج تیرے اس مقدس دن میں اکٹھے ہو سکیں اور بطور کلیسیا ہم اکٹھے مل کر تیری عبادت کر سکیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو آ رہے ہیں تاکہ ہم اکٹھے بطور کلیسیا عبادت کر سکیں۔ ان سب کے لیے خداوند تیری حفاظت مانگتے ہیں، اور خاص طور پر خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تم ہمیں پاک روح کی رہنمائی بخش دے، پاک روح کی معموری بخش دے، تاکہ آج کی عبادت کے وسیلے سے ہم یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تم اپنے پاک روح سے ہماری مدد کر، تاکہ ہمارے ذہان خیال تیری طرف لگ جائیں، دنوی سوچیں اور فکریں یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ اور خداوند جب ہم تیری حمد کے گیت گاتے ہیں، تیرے کلام کو سنتے اور تجھ سے مانگتے ہیں تو ہم برکت پائیں۔ خداوند آج جتنے لوگ اس عبادت میں کسی پریشانی، دکھ، تکلیف یا بیماری کے ساتھ شامل ہیں، آج اس عبادت کے وسیلے سے تسلی، اطمینان اور معجزات پائیں، اور خداوند تیرا فضل تیرے لوگوں پر جاری رہے۔ خداوند آج پورے پاکستان میں جہاں بھی مسیحی لوگ عبادت کے لیے جمع ہوں، ان سب کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کی حفاظت و نگہبانی کر، شر پسند عناصر سے، دہشت گردی سے تو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ، اپنی آگ کی باڑ اپنے لوگوں کے چوگرد لگا دے تاکہ تیرے لوگ محفوظ رہیں اور محفوظ ہو کر عبادت کر سکیں۔ خداوند ہم سب کے ایمان کو مضبوط کر، قوائر کو خداوند تیرے پاک روح کی مدد و رہنمائی میں دیتے ہیں، تاکہ پاک روح سے معمور ہو کر، تیرے پاک روح کی آگ سے معمور ہو کر حمد و ثنا میں ہمارے مددگار ہو سکے، اور اس حمد و ثنا کے وسیلے سے یسوع کے نام کو جلال مل سکے۔ یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ Hallelujah.
رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی اور مردوں کی عدالت کلیسیا پر مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 46 گائیں گے۔ زبور 46۔ رب ساڈا زور ہے، جناب ساڈی ہے بنا۔
सरों को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर जॉन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने ये फजल किया कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हो सके हैं। इस जगह के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे। एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद इस अदारे को बरकत दे, इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को भी बरकत दे, बहाली आए, मुआशी इस्तेकाम आए, अमन और सलामती हो और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और अपने मुल्क में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती को भी कायम करे। और इसके साथ ही मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद इस मुल्क में भी और पूरी दुनिया में मसीहों की हिफाजत करे, उन्हें ईमान में मजबूत करे और एज़ारसानियों का सामना दलेरी से करने और ईमान में कायम रहने के लिए तैयार करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक खुदा यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तमाम बरकतों के लिए, नेमतों के लिए खुदा, जिनके हम लायक नहीं तो भी खुदा ये तेरा फजल और तेरा बख्शा गया इस्तेहकाक है कि खुदा तूने हमें चुन लिया और खुदा तूने हमें शर्फ बख्शा कि हम खुदा तेरे घर में आ सके और मिलकर तेरे सामने झुक कर खुदा अपनी दरख्वास्तें, अपनी मुनाजात तेरे हुजूर रखें। खुदा हमारा ईमान और यकीन इस बात पर है कि तू यहाँ पर मौजूद है और खुदा तेरे कान हमारी दुआओं पर है। खुदा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। जितने लोग इस वक्त घर में ऑनलाइन हमारे साथ खुदा इस इबादत में शरीक हैं उनके घरानों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। जितने लोग इस वक्त रास्ते में हैं और खुदा यहाँ पर इबादत के लिए आने को हैं तो खुदा हर तरह की रुकावट, परेशानी, हर तरह के हादसे से उन्हें बचा ताकि सब यहाँ पर पहुँच कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस कर सके। खुदा उन लोगों के लिए खुदा जिस वक्त मुल्तजी हूँ जो किसी वजह से, किसी मजबूरी से, किसी तकलीफ से नहीं आ पा रहे हैं, तो खुदा तमाम तर रुकावटों को, बंदिशों को दूर कर ताकि खुदा आइंदा को वो तमाम लोग खुदा यहाँ पर मौजूद हों और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज की इबादत खुदा हम सब के लिए बायस करते हैं। खुदा इसी तरह से जहाँ जहाँ इबादत होती हैं खुदा तेरा फजल और तेरा गहरा रहम वहाँ पर चाहते हैं। हर तरह के शर पसंद अनासर को और इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को खुदा अपने घर से दूर रख ताकि तेरे लोग अमन और आशती के साथ
तेरे घर में बैठ कर खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल में हिस्सा वाइज करें। खुदा उन इबादत पर तेरी बरकत को मांगते हैं जहाँ पर खुदा गुजरे वक्त में बहुत मुश्किलात रहीं। जड़ावाला को हम खुदा तेरे हजूर में रखते हैं, तो खुदा वहाँ पर इबादत का आगाज़ हो चुका है, लोग वहाँ पर जाते हैं और खुदा चर्चेस में बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो खुदा उन लोगों के साथ हो, हर तरह की ज़रूरतों को खुदा तेरे हजूर में रखते हैं। खुदा उन्हें किसी तरह की कोई कमी ना आने पाए। खुदा उन लोगों को तहरीक बख्श ताकि वो तेरे लोगों की मदद के लिए खुदा वहाँ पर रवानी से पहुँचे और खुदा जो भी उनके पास है खुदा तो दलेरी के साथ और खुदा खुले दिल के साथ खुदा उन लोगों की मदद के लिए वहाँ पर फराहम हो। खुदा बाकी मानदा जितने भी वहाँ पर खुदा मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, गो के खुदा उन लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, चर्चिस का बुरा हाल है, तो खुदा उनको अपने लोगों को तहरीक बख्श ताकि उन घरों के लिए, उन लोगों के लिए, खुदा उन चर्चेस के लिए लोग दिल खोल कर अपने एहतियात दें और खुदा वहाँ पर तेरा गहरा फजल हो। इसी तरह से खुदा उन लोगों के लिए खुदा जहाँ पर उन मुल्कों के लिए जहाँ पर तेरा नाम लेना ममनू है, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, तो खुदा अपना गहरा फजल वहाँ पर ताकि खुदा वहाँ पर लोगों के जहन बदलें और खुदा तेरा नाम आज़ादी के साथ दुनिया के कोनों पर फैले। अपने कैंपस को खुदा जहाँ पर हम आज़ादी के तौर पर आते हैं, आज़ादी के साथ आते हैं और खुदा तेरे नाम को खुले तौर पर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इस कैंपस को तेरे सामने रखते हैं। इस कैंपस पर खुदा तेरा गहरा फजल हो, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं खुदा एक एक के साथ हो, एक एक घर पर खुदा तेरा गहरा फजल हम देते हैं। खुदा तमाम खादमीन को जो खुदा इन मुश्किल हालात में भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुश्किलात में गिर कर भी खुदा तेरे नाम को लोगों के साथ बांटते हैं, खुदा उन तमाम लोगों को तेरे हजूर में रखते हैं। खुदा तो उनको दिलेरी की रूह इनायत की है, तो खुदा तो अपना फजल उनके साथ रख ताकि वो उन जगहों पर भी जाकर तेरे नाम की बुनियादी खुले तौर पर करने के खुदा काबिल हो सकें और खुदा तेरा गहरा फजल उनके साथ हो, तेरी मुहाफ़त उनके लिए। खुदा आज के पैगाम को जबकि तेरा बंदा हमारे साथ शेयर करने को है, खुदा तेरे गहरे फजल को, तेरे मसला को खुदा तेरे बंदा पर मांग लेते हैं। खुदा कलाम की जो भी बातें वो हमारे साथ शेयर करते हैं खुदा आसान तौर पर हमारे साथ शेयर करें और खुदा वो कलाम हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में नक्श हो, अपने बंदा को अपने जलाल से खुदा एक बार फिर जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए बरकत की दुआ को मांगते हैं, तेरे जिंदा कदूस और जलाल नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 66 गाएंगे। ज़बूर नंबर 66। सारे लोग को साढ़े रब नूं दन दन आख के गाओ।
وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں، اس کے خون کی قدرت کے وسیلے سے شفا ملتی ہے۔ اس لیے ہم سب ایماندار یہاں پر جمع ہیں اور ہمارا یہ خدا پر بھروسہ اور یقین ہے کہ جب ہم متفق ہو کر ایک دل ہو کر دعا کرتے ہیں تو یسوع نام سے ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ آئے ہم سبھی اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکا کر اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے اور کلیسیا میں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے شفا مانگے۔ خدا قدوس، ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع کے لیے شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کو وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔
और तेरे बेटे यीशु नाम की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं जिसके वसीले से हम फतह पाते हैं। यीशु के खून की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं जिसमें शिफा है, जो उसने सलीब पर बहाया, उसके खून की कुदरत से हम धुल जाते हैं, पाक ठहरते हैं, हमारी निजातें जाती रहती हैं, हमारी बीमारियां धुल जाती हैं। इसी ईमान में खुदावंद तेरी हजूरी में मौजूद हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू और हमें धो। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से हम पाक हो जाएं, हमारी निजातें जाती रहें, हमारी रूहानी बीमारियां जाती रहें, हमारी जिस्मानी बीमारियां यीशु के नाम से चली जाएं। खुदावंद तू हमारी जिंदगी में मौजज़ा कर। खुदावंद हम अपनी कुव्वत और अख्तियार से नहीं, यीशु नाम से हुक्म देते हैं और यीशु नाम की कुदरत से फतह का ऐलान करते हैं। हर एक दर्द यीशु के नाम से हमारे जिस्म से चली जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, जिस्मानी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद तू हमें रहाई दे, तू हमें खुदावंद शिफा दे। हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें तेरी हजूरी में याद करते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस सरवर, मिसेस लवीजा, मिसेस खुर्शीद, बहन मीना क्रिस्टोफर। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं यूनुस साहब के लिए और उनके सारे खानदान के लिए, बेटे अयान के लिए, बेटे अब्दियल के लिए। इसी तरह से दुआ करते हैं भाई अगस्त पॉल के लिए, भाई क्रिस्टोफर लेस्ली के लिए, क्रिस्टोफर यूसुफ के लिए, भाई अगस्टीन के लिए, भाई शहजाद और भाई नदीम जॉर्ज के लिए दुआ करते हैं, भाई आसिफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सबको छू और शिफा दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन सब की जिंदगी में मौजज़ात मांगते हैं। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से सभी शिफा पाएं। हर एक बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं इनके जिस्म से दूर हो जाए। और खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं यीशु के नाम से उन्हें बरकत मिल जाए। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से शिफा हो जाए और खुदावंद उन्हें तू अपनी मेरास दे, तेरी तरफ से उन्हें औलाद की नेमत मिले। खुदावंद दुआ करते हैं हम में से हर एक की तू हिफाजत कर, हमें वबाई अमराज से और मुख्तलिफ बीमारियों के हमलों से, हादसा से महफूज रख। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अब आप मांग लेते हैं, आमीन। जरूरी ऐलानात हैं। आइंदा अतवार शायरबानी का अतवार है। 10 सितंबर 2023 को हम जब इबादत में आएंगे तो हम खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार करके आएँ, और जो लोग आज नहीं आए उन्हें भी ज़रूर बताएं ताकि वो भी खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद को तैयार कर सकें। इसके साथ ही गुज़श्ता अतवार भी मैंने आपसे दरख्वास्त की, फिर याद दहानी कराना चाहता हूँ कि जब आप कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं तो सिक्योरिटी के साथ ज़रूर तामन करें। वो आपकी हिफाजत के लिए है, वो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं ताकि आप महफूज होकर इबादत कर सकें। सिक्योरिटी एक इस मुल्क में आज अहम इशू है और उसको हल करने के लिए, उसमें महफूज रहने के लिए आप लोगों के ताबन की ज़रूरत है। जब आप एंटर हों तो ज़रूर गाड़ी को रोकें ताकि वो अपनी गाड़ी को स्कैन कर सकें और उसको चेक करके आगे आने के लिए कह सकें। और उसमें ज़रूर हमारा आदमी वहाँ पर मौजूद होता है, अगरचे वो आपको पहचान लेता है और उसको पता होता है कि कौन से लोग मेंबर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये तो कोशिश करते हैं आपको कार्ड ना बनवाना पड़े, लेकिन गाड़ी की स्कैनिंग जो है वो ज़रूरी है ताकि आप लोग सेफ होकर यहाँ पर बैठ सकें। इसलिए ज़रूर उनके साथ ताउन करें, गुस्सा ना नहीं करें, बल्कि उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ। वो हमारे साथ हमेशा यहाँ पर मुश्किल मौसम में भी खड़े रहते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और क्वायर के साथ मिलकर गीत को ज़रूर गाएं ताकि हम भी हमदो सना में शामिल हो सकें। आज का गीत भी मैंने अभी जो चर्च ग्रुप है उसमें शेयर किया हुआ है, आप लिरिक्स वहाँ से ले सकते हैं। और ये गीत बहुत मशहूर है, तेरे कलाम दी अल्लाह सच्ची जान पा दी। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने ये गीत सुना हुआ है और जिन तक के लिरिक्स पहुँच चुके हैं वो ज़रूर हमारे साथ शरीक हों और इस संदेश में हमारा संदेश। थैंक यू।
खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 353 तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। और इस गीत के इख्तिताम पर हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। गीत नंबर 353 तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे।
मुकद्दस में से मुकद्दस पत्रस का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 9 to 12। मुकद्दस पत्रस का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की नजात हासिल करते हो। इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूहुल कुदस के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। तशरीफ रखें। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा हस्बे रब्बी खुदा, हम इकरार करते हैं कमजोर हैं, हमारा इल्म महदूद है, हमारी अकल नाकिस है। तेरे कलाम के वेद हमारे लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि हम इंसानी अकल के साथ इनको समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त खुदावंद हम तेरी हुजूरी में हैं और दुआ करते हैं कि तू अपने पाक रूह की मदद बख्श दे। खुदा पाक रूह तू छू और मसा कर और मामूर कर, संजीदगी की रूह बख्श दे। सुस्ती और काहली यीशु के नाम से जाती रहे, दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से चली जाएं। और खुदावंद हम इस वक्त तेरे कलाम से बरकत पाने के लिए खुद को तेरे ताबे करते हैं। तू मदद कर खुदावंद, ताकि आज का कलाम बरकत का बायस हो, यीशु के नाम से, आमीन। मुकद्दस पत्रस के पहले खत के पहले बाब में हमने इसका आगाज जो है वो देखा कि जब हम इसके पहले बाब की पहली 2 आयात को देख रहे थे, उसमें से सीख रहे थे, तो उसमें से खुदा के बंदे पत्रस ने ईमानदारों को जब ये खत लिखा, तो मुकद्दस पत्रस ने अपने ईमानदार भाइयों और बहनों को आगाह किया कि वो बरगजीदा हैं, चुने गए हैं, अलग किए गए हैं। और इस अलग किए जाने की चंद बरकत भी उसने ईमानदारों के सामने रखी। उसमें से हमने एक ये सीखा कि हम इसलिए चुने गए हैं कि हम नए सिरे से पैदा होकर लाजवाल मेरास को हासिल करें, अपनी मेरास को हासिल करें। फिर उसके बाद गुज़श्ता अतवार में हमने सीखा कि हम इसलिए चुने गए हैं कि हम दुख उठाने का एजाज़ हासिल कर सकें, और दुख उठाने के एजाज़ हासिल करने के वसीले से लाजवाल और अबदी इज्जत और जलाल का बायस ठहरे, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त होगा। उसके बाद जो तीसरा बरकत चुने जाने के लिए मुकद्दस पत्रस ने ईमानदारों के सामने रखी, वो रूहों की नजात है। ये सारी चीज़ों का मकसद जिसमें खुदा ने हमारा चुनाव किया है, नजात है। नजात का जो पैगाम है, ये खुदा के अवलीन मकसद को इस दुनिया में बयान करता है। और पूरी बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम जो है, ये बाइबल मुकद्दस जो हमारे पास मौजूद है, ये खुदा के नजात के पैगाम को और मंसूबे को पेश करती है। पैदाइश से लेकर मुकाशवा की किताब तक हमें खुदा का ये मंसूबा नजर आता है कि वो दुनिया को गुनाह से रहाई देकर, नापाकी से निकाल कर पाकीज़गी में नजात के जरिए से दाखिल करना चाहता है।
और इस दुनिया को दोबारा से उसी सूरत में बहाल करना चाहता है जिस सूरत में खुदा ने इस दुनिया को बनाया। और बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे में मुकाशवा की किताब तक खुदा के इसी मंसूबे और इसी पैगाम को पेश करती है। पुराने अहदनामे में हमें बहुत से वाक़यात मिलते हैं, कुछ हमें स्टोरीज मिलती हैं, जंगों के वाक़यात मिलते हैं, गुलामी से रहाई के वाक़यात मिलते हैं, फिर गुलामी के वाक़यात मिलते हैं, नबियों के पैगाम मिलते हैं। हर तरह के मौके पर, हर वाक़े में हमें खुदा के नजात बख्श मंसूबे की तस्वीर नजर आती है। अगर हम मिस्र की गुलामी से रहाई के खुदा के इंतजाम को देखें, इसी तरह से खुदा के अपने लोगों के साथ एक ऐसी जमीन और ऐसे मुल्क के वादे को देखें जो उसने इस्राएल के साथ किया। इस सारे मौके में, इस सारे मंसूबे में हमें खुदा का इंसानों को गुनाह करने वाले लोगों से अलग करने और रास्तबाजी की जिंदगी बसर करने का मंसूबा नजर आएगा। खुदा ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला, तो असल में खुदा ने इस्राएल को खुदा के खिलाफ चलने वाले लोगों की गुलामी से रहाई दी। खुदा इस्राएल को वादा किए हुए मुल्क कनान में ले गया, तो वहां पर खुदा ने अमूरियों और गुनाह करने वाले लोगों पर खुदा के लोगों को गलबा दिया और उन गुनाह करने वाले लोगों को खत्म करके वो जमीन और मेरास खुदा ने अपने लोगों को दी, ताकि खुदा के लोग खुदा की इबादत उस जमीन पर कर सकें और रास्तबाजी की जिंदगी गुजार सकें। और इसके बाद हमें दोबारा से मुकद्दसीन या नबियों के पैगामों में, उनकी नबूवतों में खुदा के नजात के मंसूबे की तस्वीर नजर आती है। यानी ये जो रूहों की नजात का खुदा का मंसूबा है, ये एक ऐसा प्रिविलेज है, ये एक ऐसा एजाज है जिसके लिए हम चुने गए हैं, और ये एक ऐसा एजाज है जिसकी नबूवतें अंबिया ने की, जिसके बारे में अंबिया ने पैगाम दिया कि नजात दहिंदा इस दुनिया में आएगा और इस दुनिया को नजात देगा, इस दुनिया को गुनाहों की गुलामी से रहाई देगा। उस नजात को वो खुद तो देख ना सके, लेकिन उन्होंने पैगाम दिया और उस नजात को ईमानदारों ने हासिल किया है। पतरस रसूल का इस खत में रूहों की नजात के पैगाम देने का मकसद ईमानदारों को यह बावर कराना है कि हम इस अजाज को हासिल कर पाए हैं जिसकी नबूवतें अंबिया ने की, जिनका पैगाम अंबिया ने दिया, लेकिन वो खुद उसको देख ना सके। पर खुदा ने ये मंसूबा अपने नबियों की जिंदगी में पूरा किया। मुकद्दस मूसा ने इस्राएल की रहनुमाई की ताकि वो उन्हें उस मुल्क में लेकर जाए जिसका वादा खुदा ने उनसे किया है, लेकिन खुद वो उस मुल्क में दाखिल ना हो सका। खुदा ने पहाड़ को कि यहां से उस मुल्क को देख ले जिस मुल्क में मैं अपने लोगों को लेकर जा रहा हूं, जो मैं अपने लोगों को देता हूं, लेकिन तू उसमें जा नहीं सकेगा। इसी तरह से अंबिया ने यीशु के बारे में पैगाम दिया, पेशन गोइयां की, नबूवतें की, उसके दुखों के लिए, उसकी मसलूबियत के लिए, उसकी जलाल की हालत को पहुंचने के लिए, उसकी बादशाही के कायम होने के लिए, दुनिया की बहाली के लिए, गुनाहों के खात्मे के लिए, एक नई दुनिया के लिए, एक नई दुनिया के क़याम के लिए अंबिया ने पेशीन गोइयां की, लेकिन वो खुद उसको देख ना सके। लेकिन मैं और आप उस पैगाम को सुनकर उस पर ईमान लाए हैं। हमने गुज़श्ता अतवार भी एक अजाज के बारे में सीखा कि सफरिंग इज अ प्रिविलेज फॉर क्रिश्चियंस, के दुख जो हैं वो ईमानदारों के लिए एक अजाज है, और जिन्होंने यीशु को अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन उन्हें कबूल किया है, ये ईमान उनके लिए अजाज है। इसी तरह से आज पतरस एक नई और खुशखबरी को ईमानदारों के सामने रखता है, और वो खुशखबरी ये है
کہ بہت سے انبیاء نے جس کی پیشن گوئی کی وہ خود اس کو دیکھ نہ سکے، لیکن ہم لوگ یہ اعزاز رکھتے ہیں کہ ہم اس خوشخبری کو سن سکتے ہیں، ہم اس خوشخبری کو پیش کر سکتے ہیں، ہم اس خوشخبری کو لوگوں کو سنا سکتے ہیں۔ نجات کا پیغام اس دنیا کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے۔ نجات کا پیغام اس دنیا کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے اور اعزاز ہے جو ایمانداروں کو حاصل ہوا ہے۔ اور پطرس نے اس کو دو طرح سے اس کے بڑے پن کو اور اس کے قیمتی ہونے کو پیش کیا ہے کہ انبیاء نے اس کی نبوت کی اور فرشتے اس پر نظر کرنے کے مشتاق رہے، فرشتے بھی اس کے بارے میں پیشین گوئیاں کرتے رہے۔ انبیاء نے جن پیشین گوئیوں کو یسوع کے بارے میں پیش کیا، یسوع کے لیے جو نبوتیں کی یسایہ نبی نے، اسی طرح سے مقدس داؤد نے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کی، خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھنے کی، سب کچھ اس کے قدموں تلے کرنے کی جو پیشین گوئیاں کی ہیں زبور 110 میں، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور دکھ کے بارے میں، اس کی پوشاک پر پورا ڈالنے کے بارے میں 22ویں زبور میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔ 53ویں باب یسایہ نبی کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی، اس کی قبر شریروں کے درمیان ہونے کی پیشین گوئی کی گئی۔ ان ساری پیشین گوئیوں کے باوجود فرشتوں نے مقدس حزقیل کو، مقدس دانیل کو رویا دی کہ دنیا بحال ہوگی اور خدا کی بادشاہی قائم ہوگی۔ اس کے باوجود فرشتے بھی اس میسج کو، اس پیغام کو، اس نجات کو جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کو سننے اور دیکھنے کے مشتاق رہے ہیں۔ یعنی یہ پیغام پطرس نے کہا ہے کہ جو خوشخبری کا پیغام ہے، نجات کا پیغام ہے، یہ چھوٹا پیغام نہیں ہے، یہ عام خوشی کی خبر نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور پطرس نے اس کے لفظ استعمال کیا کہ نبیوں نے اس کی بڑی تلاش کی۔ صرف اس نے تلاش کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے کہا کہ انہوں نے بڑی تلاش کی، بڑی تحقیق کی کہ یہ کب اور کیسے ہوگا، اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ ان کی تحقیق، ان کی نبوت، ان کا ایمان سے بھرپور سفر اس انتظار میں رہا کہ آخر کار نجات دہندہ آئے گا اور اس دنیا کو نجات دے گا۔ لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج یہ پیغام اس دنیا کے پاس ہے، نجات دنیا کے درمیان ہے، اور نجات دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ نجات دہندہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ رسولوں نے اس کی گواہی دی۔ اعمال کی کتاب میں ہمارے منادی کی بنیاد ہی یسوع کے دکھ اور اس کے جلال کی حالت تھی۔ اعمال کی کتاب میں پطرس نے جب پہلا پیغام دیا، سب سے پہلے پیغام میں، سب سے پہلی منادی میں اسی بات کو اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 36ویں آیت میں پطرس نے کہا، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ یعنی یہاں پر پطرس رسول نے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا ذکر کیا اور پھر اس کے جلال کی حالت کا ذکر کیا۔ اسی طرح نبیوں نے بھی یسوع کی دکھوں کا ذکر کیا، پھر اس کے جلال کی حالت کا ذکر کیا ہے کہ اس نے وہ دکھ اٹھائے گا اور جلال کی حالت کو پہنچے گا۔ اسی طرح سے پطرس نے کہا کہ اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ جس خداوند کو تم نے مصلوب کیا، اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا، یعنی اسے آقا، مالک بنا دیا، اسے لارڈ بنا دیا۔ اور یہ نجات جو ہے، اس کا اعزاز جب لوگوں کو حاصل ہوا تو خداوند یسوع نے خود اس کا اعلان کیا۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 19ویں باب میں ہمیں زکئی کی مثال ملتی ہے۔ زکئی خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کا مشتاق تھا، اس کی کوشش کرتا تھا، جس طرح نبی بڑی تلاش کر رہے تھے، تحقیق کرتے تھے۔ اسی طرح سے فقیہ اور فریسی، سردار کاہن، ہر ایک یہودی اسی انتظار اور تحقیق میں تھا کہ نجات دہندہ آئے، ڈیلیورنس ہو، مخلصی ہو۔ اسی طرح سے اور قومیں بھی اس تلاش میں اور تحقیق میں تھی۔ اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا تو جو مجوسی ہیں وہ بھی
तहकीक करके खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने आए। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में निजात दहिंदा इस दुनिया में आया, तो ज़कई जिसने यीशु के बारे में सुना होगा कि बड़े मोजज़ात करता है, बड़ी अच्छी तालीम है, अनोखी और नई तालीम है, और बहुत से लोग उसकी तालीम से खाइफ भी थे और बहुत से लोग उसकी तालीम से मुतासर भी थे। तो ज़कई जब वो यरू में दाखिल हो रहा था तो लिखा कि ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, यीशु को नहीं पता कि एक शख्स ज़कई, यीशु को क्या नहीं पता कि एक शख्स जो है ज़कई जो है उसको देखने की कोशिश कर रहा है। यीशु ने उस दरख्त के नीचे खड़े होकर उस जगह पहुंचा और ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। यीशु को घर ले गया और फिर यीशु ने आखिर में कहा, आज इस घर में निजात आई है। बड़ा अजाज ज़कई को हासिल हुआ। ज़कई में दो बातें थी, एक तो ये महसूल लेने वालों का सरदार, और महसूल लेने वालों के सरदार काबिल नफरत लोग थे, महसूल लेने वाले ही काबिल नफरत लोग थे, और दूसरा कद में छोटा। खामी है उस दौर में कि वो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी, कोशिश वो करता था कि मैं इस निजात दहिंदा को देख सकूं, जिसके बारे में उसने सुना था कि ये निजात दहिंदा है, वो शिफा देता है, मोजज़ात करता है, बड़े बड़े काम करता है, लोग उसके पीछे चलते फिरते हैं, वो बड़ी बड़ी भीड़ जो है वो उसके पीछे चलती है, उसकी तालीम बड़ी खूबसूरत है, बातें खुदा की बादशाही की करता है। कोशिश करता था कि उसे देख सके। यीशु उस दरख्त के नीचे पहुंचा, कहा, ज़कई नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और फिर आखिर में कहा, आज इस घर में निजात आई है। ये एक अजाज ज़कई को हासिल हुआ। ये अजाज, निजात का अजाज जो है वो गुनाहगारों को हासिल होता है। और फिर यीशु ने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद निजात है। खुदा का इस दुनिया में अपने बेटे को भेजने का मकसद निजात है। अंबिया की नबूवतों का मकसद निजात का पैगाम है। रसूलों की मुनादी का मकसद निजात का पैगाम है। ये निजात का पैगाम ही इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा पैगाम है, जिसके जरिए से दुनिया खुदा को जान सके, खुदा की मोहब्बत को जान सके। और इस अजाज को बतौर ईमानदार हमें हल्का लेने की जरूरत नहीं है। हम ये तो कहते हैं हम निजात याफ्ता है, हम ये तो कहते हैं खुदावंद ने हमें निजात दी है, यीशु हमारे लिए आया, यीशु दुनिया का निजात देता है, यीशु मुनज्जी है। यीशु का नाम का मतलब ही ये है निजात, खुदावंद निजात देता है। लेकिन इसके बावजूद निजात हमारी जिंदगी में किस हद तक काम कर रही है और हम निजात को किस हद तक समझें, ये सवाल हमारे लिए बड़ा अहम है कि रूहों की निजात का अजाज जो है वो हमें हासिल हुआ है, तो उसका मकसद क्या है। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल के खत में हम इस बड़े मकसद को जानते हैं। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 7वीं आयत तक। 4 आयत में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों में उसके साथ बिठाया। इस निजात का मकसद ये है कि उसने हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमानी मुकामों में बिठाने का वादा किया है। ये असल में निजात का एक नतीजा है। हम जब फिलिपियों के खत को देखते हैं तो फिलिपियों के खत में खुदावंद यीशु मसीह को
खुदा ने अपने दाहिने हाथ बिठाया और सर बुलंद किया है। फिलिपियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के 7 आसमानी मकामों पर बैठने का जिक्र मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ, खुदा के दाहिने हाथ खुदावंद यीशु मसीह के बैठने का जिक्र हमें नए अहद में मिलता है। लेकिन इफिसियों के खत में पौलुस ने इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो इफेक्ट है, उसको बयान किया है कि जब यीशु को खुदा के दाहिने हाथ बिठाया है तो उसके साथ ही जब हमें निजात मिली है तो ईमानदारों को भी खुदा ने यीशु के वसीले से आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया है। हमें भी उस जलाल में शामिल किया गया है। ईमानदारों को ये बड़ा अजाज हासिल हुआ है कि जिस तरह यीशु को खुदा ने दाहिने हाथ बिठाया है, हमें यीशु के साथ आसमानी मकामों पर बिठाया है। हमें ये वादा दिया है कि ईमानदार भी यीशु के साथ आसमानी मकामों पर बैठेंगे, उसके साथ बादशाही में शामिल होंगे, उसके साथ अब्दी मेरास में शामिल होंगे और उसके साथ अब्दी मेरास में शामिल होकर उसकी बादशाही में शराकत करेंगे। मेरे अजीजों, इस निजात को जब हम अपनी जिंदगी में देखते हैं तो फिर एक और जहन में भी हमें बात रखने की जरूरत है कि जब हम इस अजाज को पाते हैं और ये क्लेम करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें निजात दी है और इसके नतायज ये हैं, इनाम ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर बैठेंगे। लेकिन उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस निजात को लोगों के सामने जाहिर करें। वो हमारे कामों से जाहिर होती है। अगर हम निजात याफ्ता हैं, अगर हम क्लेम करते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, तो हमारे कामों से लोगों को नजर आए कि ये निजात याफ्ता है और हमारे कामों से लोग जाने कि इन्हें ये अजाज हासिल हुआ है कि इस दुनिया के बाद वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमानी मकामों में बैठाए जाएंगे, जलाल में दाखिल किए जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी भी बदले। हम बातों में बहुत कुछ दावे करते हैं, ईमान में हम बड़े अपने आप को मजबूत जाहिर करते हैं, लेकिन अगर हमारे काम हमारे ईमान को जाहिर नहीं कर रहे, निजात के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई, तो फिर हमारा जो एजाज है वो बेफायदा है और उसको लोगों के सामने जो गवाही है उसमें कोई भी असर नहीं होगा। रोमियो के खत में इस निजात के हवाले से बड़ा जिक्र किया गया। बार बार पौलुस रसूल ने इस पर जोर दिया है कि अगर हमें निजात मिली है तो फिर नई जिंदगी का भी आगाज है। अगर हमें ये वादा दिया गया है कि हमें खुदावंद जलाल में दाखिल करेगा, तो इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में हमारे काम कैसे हैं, इस दुनिया में हमारे दूसरों के साथ रवैया, दूसरों के लिए हमारी सोच, दूसरों के लिए हमारा जो दूसरों के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो कैसा है। ये सवाल जरूर अपने आप से पूछें कि अगर पतरस ने हमें इन बड़े अजाजों के बारे में बताया है जिनको पढ़कर हम बड़े खुश हो जाते हैं, और पतरस के खत में पतरस ने इसका जिक्र भी किया कि ये जो अजाज हैं ये हमें खुशी देते हैं। पतरस ने कहा कि हमें अब्दी और लाजवाल मेरास का वादा दिया गया है। पतरस ने कहा कि अगर हम दुख उठाएंगे तो हम अब्दी मेरास के वारिस हो जाएंगे, हम उसकी तारीफ के लायक होंगे, खुदावंद की तरफ से तारीफ के लायक होंगे। उसने ये वादा किया कि हमें ये एजाज मिला है कि हमारी रूहों को निजात मिली है, और बहुत से अंबिया इसको देखने के मुश्ताक थे, फरिश्ते इसको देखने के मुश्ताक थे, अंबिया इसकी नबूवत करते थे, रसूलों ने इसका पैगाम दिया, लेकिन हमें निजात मिली है, हमें ये एजाज हासिल हुआ है। तो इस एजाज के बारे में अपने आप से सवाल करें कि क्या इस एजाज को हासिल करने के बाद हमारे कामों में भी तब्दीली आई है या नहीं आई, या हमारे काम दुनिया के जैसे ही। मैंने शुरू में अर्ज किया कि खुदा ने अपने लोगों को इसलिए दूसरे लोगों से अलग किया
पुराने अहदनामे में भी खुदा ने अपनी कौम जिसको उसने चुना था इसलिए दूसरे लोगों से अलग किया ताकि ये गुनाहों से दूर रह सकें, ताकि ये गुनाहों की जिंदगी से दूर रह सकें, ताकि ये दूसरे खुदाओं की प्रस्तुश से दूर रह सकें और रास्तबाजी की जिंदगी खुदावंद में बसर कर सकें। इसी तरह आज भी निजात का पैगाम हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें अपने आप को दुनिया से, दुनिया के कामों से, दुनियावी सोचों से, जिस्म के कामों से अलग करके अपने आप को पाकीज़गी की जिंदगी में चलाते हुए दूसरों तक इस निजात का पैगाम पहुंचाना है। और मेरे बहनों और भाइयों, अपने रवैये से जितनी गवाही दे सकते हैं उतनी गवाही दे सकें। हम लोगों को बाइबल नहीं सुना सकते, लोगों को बाइबल के हवाले शायद ज्यादा ना सुना सकें, या हमारे लिए ये मौका ना हो कि हम आज़ादी के साथ कहीं पर कलाम की मुनादी कर सकें, लेकिन मेरे और आपके काम, मेरे और आपके रवैये, मेरे और आपकी सोचें निजात का पैगाम दुनिया को दे सकती है, लोगों को निजात का पैगाम दे सकती है। लोग हमारे रवैये, हमारे काम से, हमारी सोचों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये निजात याफ्ता है। और मसीहों के लिए बड़ा जरूरी है कि उनकी जिंदगी में निजात का तजर्बा हो। जिस तरह हमने सीखा कि मसीहों के लिए जरूरी है कि वो नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करे, जिसका इफेक्ट ये है कि जिंदगियों में निजात हो। हमारी जिंदगी में निजात का तजर्बा बड़ा जरूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ही निजात, खुदा का पैगाम ही निजात है। इसलिए अगर हमारी जिंदगियों में निजात का पैगाम नहीं है और हमने उसे कबूल नहीं किया और उसको जाहिर नहीं किया, तो फिर हम इस एजाज से महरूम हैं। इस एजाज से वही फायदा उठा सकता है, इस एजाज से वही बरकत पा सकता है जिसकी जिंदगी में निजात है। उस निजात को उसने एजाज के तौर पर लिया है और उस निजात से उसकी जिंदगी बदल गई है, उसके काम बदल गए, उसने नई जिंदगी को पा लिया है और लोगों तक उसकी जिंदगी से निजात का पैगाम पहुंचा है। आइए हम दुआ करिए, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें कि ये निजात का पैगाम, ये निजात का एजाज जो मुझे हासिल हुआ है, ये दूसरे लोगों तक पहुंचे। अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई खामी है, ऐसी कोई कमजोरी है जिसकी वजह से हमारे निजात के पैगाम पर हर्फ है या उस पर दाग लग रहा है, तो आज खुदावंद से माफी मांगने का मौका है और खुदावंद से दुआ करने का मौका है कि हम खुदा से दुआ करें कि वो हमारी मदद करे, कि हमारी निजात लोगों पर जाहिर हो सके, हमारी निजात का पैगाम जिसको हमने कबूल किया है वो लोगों तक पहुंच सके, लोग हमारे कामों से निजात को जान सकें, लोग हमारी बातों से निजात को देख सकें और निजात दहिंदा तक पहुंच सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा कद्दूस, हम इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं। तेरा शुक्र है बाप कि तूने हमें चुना, तूने हमें अलग किया ताकि हम निजात के उम्मीदवार हो सकें और इस निजात के वसीले से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमानी मकामों में बैठाए जा सकें। तेरा शुक्र हो खुदावंद इस बड़े एजाज के लिए, इस वादे के लिए जो तूने अपने लोगों के साथ किया है। खुदावंद दुनिया में अरबों लोग इस वादे से महरूम हैं, दुनिया में अरबों लोग इस एजाज से महरूम हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद के ये एजाज, ये प्रिविलेज हमारे पास है, ये बरकत हमें मिली है। खुदावंद दुआ करते हैं कि ये बरकत हमारी जिंदगी में कायम रहे, हम निजात के पैगाम को खो ना दें, क्योंकि हमारे घरानों में तेरे बेटे यीशु के वसीले से निजात है। तेरे बेटे यीशु को अपनी जिंदगियों में मांग लेते हैं ताकि हमारे घरानों में, हमारी जिंदगियों में निजात आए। तेरे बेटे यीशु के वसीले से निजात का पैगाम दुनिया को हमारे जरिए से पहुंचे। खुदावंद तू हमारी मदद कर, एक एक को खुदावंद यहाँ पर मौजूद है छू, ताकि हमारे तमाम ऐसे काम जो निजात के पैगाम के खिलाफ हैं यीशु के नाम से हमारी जिंदगी से जाते रहे और हमारी जिंदगी में निजात का पैगाम हो, ताकि लोग यीशु को हमारी जिंदगी से देख सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 320 गाएंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 320 हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। तारीफ करेंगे
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात को खुदावंद की हजूरी में पेश करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, हमारे दरमियान मौजूद है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद अपने बड़े फजल से हम इसे हर एक को छू और बरकत दे खुदावंद। जितने लोग तेरी हजूरी में यहाँ पर मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, सभी यीशु के नाम से बरकत पाएं और यह हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं, तेरे हुजूर में खुदावंद कबूल ठहरे। खुदावंद तमाम देने वालों को बरकत दे, रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बरकतें आएँ। और ख़ास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया को ईमान में मजबूत कलीसिया बनाओ और खुदावंद दुनियावी तौर पर भी बरकतें नाज़िल फरमा। और ख़ास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कर्ज के बंधनों में फंसे हुए तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से रहाई पाएँ, बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे, गुर्बत यीशु के नाम से ख़त्म हो और तेरे लोग बरकत पाएँ और खुशहाली पाएँ, तेरी वफादारी में चलते रहें और तुझसे बरकतें पाते रहें। खुदावंद दुआ करते हैं कि सारे हफ्ते में हम सब की हिफाजत कर, हम सब के साथ हो और खुदावंद हमें गवाही के लिए इस्तेमाल कर। हमारे कामों से, हमारे बातों से यीशु की गवाही हो। वबाई अमराज से, हादसात से खुदावंद हमें महफूज रख। और खुदावंद खास तौर हम अपने कलीसिया में तमाम बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, उनके लिए कामयाबी मांगते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उन्हें इम्तहानात में कामयाबियाँ मिलें और तेरे बेटे और बेटियाँ तरक्की करें और अच्छे मुस्तकबिल पाएँ। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। Krishna